Good morning, student. Hello. Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Again, welcome back. Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West. Subject is imperative programming. Okay. Our first unit is, I think, today we will complete. Presented by Assistant Professor Bipin P. So we have to go on your textbooks. I already completed. So see that now first unit one, we have the programming language, history, applications, logic, pseudocode, flowchart, and then after that they are giving out the basic fundamental structure of the program, how to execute character set, identifier, and our now data type is going on, data types and variable declarations. After that array it is left, array, expression, variable definition, and symbolic. That we will today we will complete, and we go to the next unit. I already send you this second unit textbook that is in the set public. You can refer the text max also. Okay, we don't mind whichever book you are refer. Same concepts are there. Some of the language of the word expression it is different. Otherwise, same concepts are the same. Anywhere you can go, concepts are the same. Related C. Is it clear? Yes. Hello. Hello. Yes, Hello. Yes, sir. sir. Yeah. So second unit is going on. First unit is going on. This is a part. I just revised the again data type because I require the data type too much in the program. Okay, data type. Again, same thing. When you declare the variable, you before that we specify the data type. Just like that, we declare the variable number one. So we have to specify number one. We are assigning the number value. So it is int. So it is integer data type. So you see that now in integer they are given so many primary data type over there. Int, maybe it is short int, maybe it is long int. It is different data type, and it is signed. Signed means negative to positive. Unsigned means only positive. So you have to specify that keyword. Signed you don't represent, by default it is signed, but unsigned you have to specify there. Unsigned, when you write that unsigned int number one, that means it is a only positive number. I confirm you with the program. Just start the program. Start all program, then Turbo C, then Turbo C 7. Okay. So many students are joining late. Where are others? Only this much students are there. I think there are 27 students in my list. So please tell them to present over there. In WhatsApp group, how many students are added? All 27? Hello. Yes, sir. Yeah, so where are others? I can't say that ki other students are interested in IT. I didn't know. They are forcefully do it or something. Just लेने का था इसके लिए ले लिया. I don't think. And please Sir, in again every I lecture, this much only students so present are present. but I think they have to attend because see in the best part it has gone. That is a unit one, and unit two is a totally best part of the programming. If loop for loop अभी स्टार्ट होगा, if loop for loop do while. तो अगर वो मिस किया तो हर एक लैंग्वेज में वही प्रॉब्लम आएगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स पार्ट है ना, मेन सिंटैक्स पार्ट है. वो सिंटैक्स पार्ट कंसेप्ट हर एक लैंग्वेज में आने वाला है. सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी, एनीवेयर पीएचपी नाउ. सो ये सारी चीजों में आपको बेसिक थिंग्स मालूम होना चाहिए. आई गो स्लोली. ओके, मैं ऐसे फास्ट फास्ट लेने वाला नहीं हूँ. मुझे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो मुझे आगे की ईयर. Okay, anyway, they have to join. I pass that message again, compulsory to join. Or one remind you, please, all students pay your fees up to 75%, yeah, full, because we require the fees, and otherwise they will on. Sorry, I think you are taken the admission now, so you have to pay the fees 50% above. So please pay the fees. Okay.
आपको जरूरी है अभी फीस पे करना, क्योंकि आप लोग ने ज्वाइन किया है तो आपका पूरा साल में अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम्स का क्या गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है वी डोंट नो, बट वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दैट थिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट वी हैव टू डू इट। तो आप जरा सा फीस का हम लोग को रिमाइंड देने बोला हुआ है, तो यू डू इट ऑल ऑफ। ओके, चलो नाउ कंटिन्यू योर turbo C. So I said about that कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस, राइट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड, देन stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, okay, then void main, and inside that we are declaring the variable. अभी सपोज मैंने int number 1 करके डिक्लेयर किया, so that is means we want to assign the value inside the variable number 1. it is numeric. it is clear? आप int डिक्लेयर करते हो, इसका मतलब हम लोग को वेरिएबल असाइन क्या करना है, हम लोग को नंबर वैल्यू। बट अगर पॉजिटिव नंबर लेना है तो क्या लिखोगे इधर, अनसाइंड। पहले में साइंड मतलब साइंड बाय डिफॉल्ट होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइंड इज मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव यू कैन। और इंटीजर कितना साइज था इंटीजर का, मैंने आपको स्पेसिफाई बताया था, चार्ट दिखाया था और सब कुछ बताया था। व्हाट इज स्पेसिफाई, देखो अभी अगेन आई एम गो बैक टू योर पीडीएफ, सी दैट नाउ। इंटीजर क्या बताया था मैंने, इंटीजर डेटा टाइप में क्या होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कितना बोलो, कितना है, 2 बाइट्स। कितना है, 2 बाइट और 4 बाइट। 2 बाइट का रेंज क्या था, अभी के प्रोग्राम में 4 बाइट होता है, बट 2 बाइट रेंज, 2 बाइट का रेंज क्या है, -3276 to 3276, यानी कि 168 से लेके पॉजिटिव 3276 के बीच में ही आप नंबर है। दिस इज रेंज, वैल्यू रेंज। अनसाइंड आईएनटी में पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया तो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 टू हाउ मेनी नंबर्स वी कैन एक्सेप्ट, 0 to 65,500 टोटल ऐड करने का, 32,768 प्लस 32,767, दैट इज मीन 65,535। 0 से लेके ये रेंज में ऐड होगा। शॉर्ट आईएनटी अगेन 2 बाइट, लेकिन लॉन्ग आईएनटी कितना दिया है, 4 बाइट, दैट इज अ रेंज इज डिफरेंट, -2147483648 2147483648। लेकिन अनसाइन करोगे 4 बाइट ही होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव। अनसाइन से क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर यू कैन एंटर, नेगेटिव नंबर यू कैन नॉट एक्सेप्ट इन व्हेन यू आर स्पेसिफाई विद द अनसाइन। ओके, इज इट क्लियर? Yes, student. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, student. Reply me. All of you clear Yes, sir. about that? Yes, Okay. sir. आपको शेयर स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? No, sir. दिखाई No, sir. नो? अरे तो कौन बताएगा, बताओ ना मुझे। अरे बाप रे, कभी कभी क्या होता है, when we are taking the lectures, so we don't know exactly what is going on the screen. So please reply that. देखो ये आपके स्क्रीन में है, ये मैं बता रहा। देखो इंटीजर क्या था, इंटीजर क्या है आपका, 2 बाइट। कितना रेंज है, -32,767 to 32,767, राइट। एंड देन अन शॉर्ट आईएनटी में भी 2 बाइट है, बट जब अनसाइन आईएनटी लिखते हैं तो अनसाइन आईएनटी में क्या होगा, 0 to 65,535, 0 से स्टार्ट होगा, ये ऐड किया। ओके, उसके बाद आपका लॉन्ग आईएनटी कितना है, लॉन्ग अगर हम लोग ने लिखा लॉन्ग आईएनटी, लॉन्ग स्पेस आईएनटी लिख सकते हैं ना हम लोग में लॉन्ग, जरा अनसाइन, देखो हम लोग ने ऐसे लिखा है अनसाइन। अगर हम लोग ने अनसाइन लॉन्ग आईएनटी लिखा तो हमारे वेरिएबल नंबर 1 का रेंज कितना होगा, 4 बाइट। कितना होगा, 4 बाइट। वो भी कितना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब कितना, 0 से लेके आपका 429496,729, दिस रेंज में हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। गॉट इट? यू हैव टू रिमेंबर दैट टोटली, एटलीस्ट ये नंबर 2 बाइट 4 बाइट याद रहे। आईएनटी 2 बाइट, अनसाइंड आईएनटी आल्सो 2 बाइट, रेंज इज 0 to 65,530, टोटल याद रखना पड़ेगा। अनसाइंड शॉर्ट आईएनटी सेम, शॉर्ट आईएनटी 2 बाइट है तो वो सेम है, बट लॉन्ग आईएनटी 4 बाइट है, तो 4 बाइट -2144836482
214483647 पॉजिटिव, लेकिन अनसाइंड करोगे तो 0 से स्टार्ट। गॉट इट? रेंज नेगेटिव नंबर अनसाइंड में एक्सेप्ट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इज अ साइन। क्लियर? यस स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप मैंने क्या बताया था? फ्लोट टाइप। फ्लोट कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग, सी द ऑन द स्क्रीन, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इधर फ्लोट डिक्लेयर किया, फ्लोट दिखाई दे रहा है? फ्लोट, यस आपको दिखाई दे रहा है? फ्लोट नंबर 2, फ्लोट नंबर 2। तो फ्लोट मतलब इन नंबर 2 वेरिएबल वी कैन असाइन डेसिमल पॉइंट। आप डेसिमल एक्सेप्ट कर सकते हो नंबर 2 के अंदर। तो नंबर 2 असाइन द डेसिमल्स, so व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा वो दिया हुआ है। रेंज देखो, फ्लोट कितना है? 4 बाइट। रेंज कितना है? 1.2 एक्सपोनेंट 38 -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट 38। एक्सपोनेंट मालूम है आपको? कैलकुलेटर में जब ज्यादा डिजिट्स हो जाते हैं 9 से ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे कितने डेसिमल लेने वाला है वो? 6 डेसिमल प्लेसेस इन द 4 बाइट। फ्लोट में कितने डेसिमल? 6। हाउ मेनी? 6 डेसिमल। फिर डबल, डबल करेंगे, फ्लोट की जगह डबल लिखेंगे तो डबल में भी वी कैन इंक्लूड द डेसिमल पॉइंट, लेकिन रेंज है 8 बाइट। 2.3 एक्सपोनेंट -3082 टू 1.7 एक्सपोनेंट +308, यानी कि 15 डेसिमल, 15 डेसिमल प्लेसेस वी कैन इंक्लूड। 15 डेसिमल अलाउड है। फिर डबल के आगे और एक है लॉन्ग डबल। लॉन्ग लिखा तो लॉन्ग, जैसे लॉन्ग INT वैसे लॉन्ग डबल। 10 बाइट, डबल नहीं किया है उधर, 10 बाइट। 10 बाइट का रेंज है 3.4 एक्सपोनेंट -4932 टू 1.1 एक्सपोनेंट 4932। सो 19 डेसिमल वी कैन इंक्लूड ओवर देयर। तो 6 डेसिमल, 15 डेसिमल, 19 डेसिमल। आफ्टर पॉइंट कितने? पहले इसमें 6, दूसरे इसमें 15, तीसरे इसमें 19। These are the decimal point, they are included in the floating data type. जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो ये याद रखना पड़ता है, चार्ट थोड़ा सा रिमेंबर कि आपकी वैल्यू क्या असाइन होने वाले, डिपेंड दैट वी आर स्पेसिफाई द डेटा टाइप। गॉट इट? यस स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. यस? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर 1 बाइट। जैसे मैंने ए प्रेस किया, ए असाइन किया तो मुझे 1 बाइट। दो कैरेक्टर किए 2 बाइट, 3 कैरेक्टर किए 3 बाइट। ये हमेशा का एक ही स्टोरेज है कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर टाइप आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू, बट रेंज, उसका रेंज उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये रेंज नंबर में, बट इज नंबर हम लोग डालते नहीं, हम लोग डालते कैरेक्टर, लेकिन वो कैरेक्टर कन्वर्ट होता है, मैंने बताया था, ASCII वैल्यू में। ASCII मतलब अमेरिकन स्टाइल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII मतलब ASCII, दैट मीन्स अमेरिकन स्टाइल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो उसमें, उसके सिस्टम में जो ASCII IBM सिस्टम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलवेयर, तो वहां पे रेंज 65 to 90 इट इज अ कैपिटल A to Z, और 97 to 122 इट इज अ स्मॉल A to Z। और बाकी दूसरे, बाकी बचे हुए 255 और दूसरे कैरेक्टर जो है 26 और 26 52 कैरेक्टर छोड़ के बाकी जितने भी है वो सिंबल्स, स्पेसेस आर इंक्लूड। तो हाउ मेनी रेंज इज देयर? 0 to 2। अगर मैंने अनसाइंड कैर लिखा तो 0 to 250 है, मतलब 256 कैरेक्टर दे आर इंक्लूड इन द ASCII वैल्यूज। है क्लियर? समझ में? ASCII वैल्यूज में क्या है? ASCII वैल्यू बोलो, ASCII वैल्यू में क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, इन ASCII वैल्यू 255 characters are included, that is 256, 0 to 250 मतलब 256। समझ में? ASCII में 65 to 90 capital A to Z, 97 to 122 small A to Z, and other are symbols, 31 symbols are there, and other are spaces are there, and other different characters they are specified for designs, and just like webbings font में वगैरह आते हैं symbol वैसे। साइन कैरेक्टर 1 बाइट। क्लियर? एनी डाउट किसी को कैरेक्टर टाइप में? हाउ यू डिक्लेयर द? हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है?
सो कैरेक्टर डेटा टाइप. सो व्हाट इज कैरेक्टर, कैसे डिक्लेयर करते हैं देखो अभी. नाउ कैरेक्टर यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, कैरेक्टर नेम. ओके, तो नेम के अंदर हम लोग जब कैरेक्टर देते हैं तो एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, यानी कि नेम इज इक्वल टू वी कैन असाइन. देखो मैं यहाँ वैल्यू असाइन करके भी दिखाता हूँ. int number 1 is equal to 45, that is numeric number. int number 2, it is a 55.67, that is a decimal point. Name is equal to quotes के अंदर a, कैपिटल A, that is character. लेकिन अगर हम लोग ने लिखा char name1 is equal to और कोट्स के अंदर नेम, तो ये एक्सेप्ट करेगा ओनली वन कैरेक्टर. तो आपको ज्यादा रेंज में अगर कैरेक्टर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो हम लोग को एरे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में नेम वन के बाद वेरिएबल असाइन, देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे स्पेसिफाई द हाउ मेनी कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर का साइज ले रहे हैं, एरे साइज. दिस इज एरे. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग दे रहे हैं वो एरे साइज स्पेसिफाई करे. सो वी डिक्लेयर द एरे वेरिएबल. name1 is a array variable, it is not only character array. Okay, and it assigns the how many, जो भी कैरेक्टर 20 कैरेक्टर तक वो एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो हेलो स्टूडेंट. यस सर. या सिंगल कैरेक्टर कैर, यहाँ पे हम लोग ने एरे स्पेसिफाई नहीं किया, वहाँ सिंगल कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड में दे दिया. लेकिन जब मोर देन वन कैरेक्टर है तो मोर देन वन कैरेक्टर हाउ यू एक्सपेक्ट एरे के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यू कैन स्पेसिफाई द कैरेक्टर साइज, एरे साइज, एंड यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर आप दे सकते हो. जितने 20 कैरेक्टर दिए तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर वी कैन एंटर ऑल. क्लियर? हेलो, यस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये हुआ नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर. ओके, सो आगे दिया है वाइड डेटा टाइप. वाइड मैंने क्या बताया था, वाइड टाइप मींस नो वैल्यू. जैसे आपने फंक्शन में दिया है वाइड में, तो वाइड मींस इट शुड फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इट शुड रिटर्न फंक्शन डायरेक्टली, इट शुड रिटर्न एग्जीक्यूट द फंक्शन डायरेक्टली. तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं वाइड. So this is usually used to specify the type of function which does not return a value. जो functions value return नहीं करता है उसके आगे हम लोग void लिखते हैं. मतलब functions को भी हम लोग डेटा टाइप दे सकते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे मैंने int लिखा, तो मुझे प्रोग्राम जब करली ब्रैकेट क्लोज होने वाला है उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0. दैट मीन्स int should return the integer value, that is return, it should return value. अगर मैंने फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया तो यहाँ पे फ्लोट लिखा है, तो फ्लोट मेन के अंदर यहाँ पे रिटर्न 0.0, दैट मीन डेसिमल वैल्यू इट शुड बी रिटर्न. अगर हम लोगों ने कैर लिखा है तो इट शुड रिटर्न कैर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू इट शुड रिटर्न. तो यहाँ पे भी रिटर्न में मुझे कैर वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई भी जो भी वैल्यू रिटर्न होने वाला है वो स्पेसिफाई. देन अगर हम लोगों ने कैर की जगह अगर वाइड लिखा तो ये रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा. रिटर्न कीवर्ड की जगह हम लोग लास्ट में स्पेसिफाई क्या करते हैं, गेट सीएच, ताकि स्क्रीन रुका सके. गॉट इट? यस स्टूडेंट. हेलो. यस सर. int float char unsigned, int unsigned char unsigned sorry डबल भी ले सकते हैं, डबल डेसिमल पॉइंट के लिए. कैर फ्लोट की जगह यहाँ पे हम लोग डबल लेंगे, तो डबल में ज्यादा डेसिमल पॉइंट वी कैन इंक्लूड हो रहे हैं. यहाँ पे कितने 6 डेसिमल 15 डेसिमल आपको बताया था, वैसे वो ज्यादा डेसिमल एक्सेप्ट कर सकता है. यहाँ पे कितने भी डेसिमल वी कैन एक्सेप्ट. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. अभी इसको मुझे दिखाना है तो प्रिंटफ में मैं खाली क्या करूंगा, परसेंटेज डी फॉर व्हाट, int, तो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ नंबर 1. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं डिस्प्ले करने वाला परसेंटेज एफ मतलब क्या बोलो, परसेंटेज एफ मतलब फ्लोट. अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो /n, तो ताकि न्यू लाइन, कॉमा NO2, तो यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू परसेंटेज एफ. फिर डबल के लिए यू, प्रिंट एफ /n परसेंटेज यू, दैट इज डबल के लिए आएगा नंबर 3. नेक्स्ट
उसके बाद कैर वैल्यू, तो प्रिंट एफ परसेंटेज स्लैश एन परसेंट, ओ माय गॉड, ओके या नाउ परसेंटेज क्या आएगा, कैर, कैर के लिए क्या आएगा परसेंटेज सी, आपका वैल्यू आएगा नेम डिस्प्ले करने वाला है। ओके, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम लोग दे रहे, प्रिंट एफ अगेन परसेंटेज स्लैश एन, परसेंटेज क्या आएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो एस, स्ट्रिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग, नेम वन, हो गया। नाउ कंट्रोल F9, देखो सारे वैल्यूज दिखा रहा है 45 55.6698 79, वो डबल का वैल्यू रॉन्ग दिखा रहा है, वो चेक कर लेते हैं। देन ए कैरेक्टर दिखा रहा है और स्ट्रिंग भी दिखा रहा है, अभी डबल में यू लिखा है इसके लिए दिखा रहा है, तो अगर हम लोग LD लिखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यस, LD में 2419 दिए रहे, मतलब वो भी नहीं है, तो लॉन्ग डबल इंटीजर्स फ्लोट, उसके अंदर क्या आएगा यू के लिए, डबल के लिए हम लोग को चेक करना है। हाँ, वी हैव टू सी दैट डबल में स्पेसिफायर क्या है, वेट, उन्होंने देना चाहिए था स्पेसिफायर लेकिन दिया नहीं। ओके, कांस्टेंट दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ग्लोबल फ्लोट डबल का कोई भी एग्जांपल दिया नहीं है, कैसे पता चलेगा। LD 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 नहीं, यू नहीं, एक्चुअल में यू नहीं तो LD आता था, अभी LD नहीं है, तो इसका मतलब स्पेसिफाई, डोंट माइंड, हम लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आता है आप गूगल में, वी गेट दैट इंफॉर्मेशन ओवर देयर, डबल वैल्यू डिस्प्ले इन सी, ओके इन सी, तो डबल वैल्यू डिस्प्ले इन सी क्या आता है, LF, क्या आ रहा है LF, मालूम पड़ गया, फटक से आप लोगों को तुरंत मालूम पड़ता है क्या आता है, LF, लॉन्ग एंड फ्लोट, दैट इज डबल, सी के अंदर थोड़ा सा आ गया। चलो क्लियर स्क्रीन, हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन किया नहीं था, क्लियर स्क्रीन किधर करोगे, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वी कैन यूज क्लियर स्क्रीन। नाउ वी कैन सी द ऑल, व्हाट हैपेंड, 0 क्यों आ रहा है क्लियर स्क्रीन करने के बाद, अच्छा ओके, देन क्लियर स्क्रीन वी कैन गो टू अप साइड, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। चलो अभी नन आ रहा है, LF NO3 बराबर है, ऑल इट इज राइट, जंक वैल्यू क्यों आ रहा है, F फॉर फ्लोट, LF फॉर लॉन्ग डबल, डबल बराबर है, LF इज फॉर द डबल। ओके, अभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना तो यू सेव योर फाइल, कैसे सेव करते हैं बताओ, you go on file, save, give the name variable, okay, और okay करो, then close your file, okay, and exit the screen। कभी कभी कंपाइलर आपको प्रॉपर नहीं चल रहा है तो बाहर आ जाओ, and then after that again you start there turbo C, if you have that problem, turbo C स्टार्ट करो। अभी फाइल ओपन करना है तो फाइल, हाउ यू कैन क्लिक ऑन ओपन, सी दैट नाउ टैब की, आपको नीचे variable.cpp दिखाई दे रहा है, ओपन इट, F5 कंट्रोल F9, नाउ वी कैन सी, बराबर है, यस, इंटीजर फ्लोट डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग, पांचों डेटा टाइप बता दिए, यस स्टूडेंट, Yes, sir. sir, या कैसे डिक्लेयर करना है देखा, INT, ये अनसाइंड दिखा है, नॉर्मल INT साइंड, लॉन्ग INT भी दिखा है, देन नेक्स्ट फ्लोट डबल कैरेक्टर असाइन, सारे वैल्यू असाइन किए और सारे वैल्यू दिखाए, तो सारे स्पेसिफायर भी बता दिए, D F LF C IS, ओके क्लियर अबाउट दैट। चलो जाते हैं आगे हम लोग, नाउ we have to do the some calculations work over there, तो हम लोग को वो कैलकुलेशन वर्क कैसे करना है वो दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम दिया था, लास्ट टाइम मैंने शायद आपको एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बताया था, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बताना है, वो सब करना है, कंप्लीट करना है। आज आपका यूनिट 1 कंप्लीट और सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाए,
नाउ वाइड डेटा टाइप के बारे में भी आपको क्लियर किया, रिटर्न कीवर्ड्स क्या होता है। नेक्स्ट अपॉन देयर इज अ साइज ऑफ करके है, साइज ऑफ। अब ये साइज ऑफ क्या है बता दो। इंटीजर का क्या साइज है वो मुझे फाइंड आउट करना है, कैरेक्टर का साइज क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए उन्होंने साइज ऑफ करके एक न्यू डेटा टाइप एक्सप्लेन किया। तो दिस फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट मेमोरी स्पेस अलोकेटेड फॉर द सी डेटा टाइप। तो वही अभी हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे सारे डेटा टाइप दिए, तो हम लोग एक साइज ऑफ करके देख के हम लोग स्पेसिफाई कर देते कि किसका साइज क्या क्या है। ठीक है, सो प्रोग्राम इज देयर, हम लोग साइज ऑफ फाइंड करना है, इंटीजर का क्या साइज है। प्रिंट है ओके स्लैश एन, हम लोग दे रहे हैं साइज ऑफ इंटीजर है, और वहां पे साइज ऑफ दिखाने के लिए हम लोग को स्पेसिफाई वैल्यूज डालना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, किसका साइज क्या है। तो आने वाला वैल्यू क्या होगा, इंटीजर में 2 बाइट 1 बाइट 4 बाइट, तो हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। सो हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ आईएनटी के बाद परसेंटेज डी में मतलब इंटीजर वैल्यू में आने, लेकिन आगे ओनली वेरिएबल का नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ NO1, NO1 का क्या साइज है वो फाइंड आउट कर हम लोग को स्पेसिफाई होगा। अगर हम लोग अभी देखते हैं आंसर में, वन मोर एरर प्रोटोटाइप, अच्छा साइज ऑफ ओके कंट्रोल F9, क्या आंसर मिला साइज ऑफ आईएनटी का 4 बाइट। कैसे क्या मिला, लॉन्ग लिखा है ना, देखो लॉन्ग लिखा है। अगर यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना है बाइट वगैरह लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं बाइट और बाइट्स, देखो 4 बाइट्स, साइज ऑफ 4 बाइट लॉन्ग आईएनटी। वी नाउ सेम थिंग हम लोग को, मैं कॉपी कर रहा हूँ, शिफ्ट इन सॉरी शिफ्ट ओके एंटर शिफ्ट इंसर्ट। अभी इंटीजर की जगह मुझे फ्लोट का साइज देखना है, तो फ्लोट साइज ऑफ फ्लोट क्या था, हमारा वेरिएबल का नाम NO2 दे रहे, साइज ऑफ फ्लोट कितना आया 4 बाइट्स। ठीक है, अभी हम लोग कैरेक्टर का साइज देखते हैं, शिफ्ट इंसर्ट साइज ऑफ कैरेक्टर कैर ओके साइज ऑफ कैर क्या था हमारा साइज ऑफ कैर में, वेरिएबल नेम, तो नेम ले रहे हैं। अभी नेम में हम लोग को 1 बाइट दे रहा है क्योंकि एक कैरेक्टर था A। अभी हम लोग साइज ऑफ परसेंटेज डी, अगेन साइज ऑफ क्या लिखेंगे, नेम 1 का क्या साइज है, तो नेम 1 का साइज हम लोग को एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर है उतने देंगे। कितने कैरेक्टर है 20 बाइट्स, देखो हर एक का साइज दिए, साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट, साइज ऑफ कैर 1 बाइट, साइज ऑफ इंटीजर नहीं क्या बोलेंगे उसको, साइज ऑफ स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं, यहाँ लिखते वक्त हम लोग ने लिखा साइज ऑफ स्ट्रिंग, इट इज 20 बाइट्स। इज इट क्लियर how it is 20 bytes? So between 5 characters, space is also 1 character, 6 again आपके 7 कैरेक्टर आएंगे प्रकाश, that is means 6 plus 7 13 again 5 18 and 19 20 आ गया। कैसे 20, 2 कैरेक्टर आपके स्पेस में इंक्लूड हो। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट? Yes, sir. हेलो स्टूडेंट? Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या तो साइज ऑफ फंक्शन कैसे, या तो साइज ऑफ फंक्शंस आपको कैसे यूज करना है उसकी स्पेसिफाइड साइज समझने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कंस्टेंट। Sir, mute है. Okay, now hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, constant double pi is equal to 3.14।
तो पाई वैल्यू इज योर रिक्वायर्ड फॉर द फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल और सम कैलकुलेशंस। तो पाई वैल्यू सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को कंस्टेंट डबल और इट कैन नॉट बी चेंज, फिक्स होता है, तो उनको कंस्टेंट कीवर्ड। तो हम लोग डिक्लेयर करते वक्त कैसे लिखेंगे, सपोज पाई वैल्यू चाहिए तो हम लोग को सपोज डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ वेरिएबल, तो आप कैसे करोगे, कंस्ट इज अ कीवर्ड, ओके, देन आफ्टर दैट डबल वैल्यू डालना है, तो डबल पाई, फ्लोट या डबल पाई 3.14 कितने डेसिमल है उतने डेसिमल दे सकते हैं, ओके सॉरी, जितने डेसिमल है उतने डेसिमल इसके आगे जितने भी रहेंगे वो दे सकते हैं। 3. दैट इज वैल्यू, इट इज फिक्स, इट कैन नॉट बी चेंज। तो पाई की वैल्यू हम लोग जब भी पाई वैल्यू लेंगे इट कैन नॉट बी चेंज, व्हाट इट, सो दैट इज कांस्टेंट। आगे नाउ यू कैन चेक, आगे इंटीजर कांस्टेंट। सो इंटीजर कांस्टेंट में इस तरह डेसिमल कांस्टेंट बेस 10, ऑक्टल कांस्टेंट बेस 8, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट बेस 16, ये भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे डेसिमल कांस्टेंट वैल्यू, तो डेसिमल कांस्टेंट वैल्यू भी आता है, इट इज रेंज फ्रॉम 0 to 9, ऑक्टल 0 to 7, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F, ये सारे आपके, ओके। नाउ आगे जाके कैरेक्टर कांस्टेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो कैरेक्टर कांस्टेंट आर रिप्लाइंग दैट कि यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर, साची जो मैसेज इकडे येत आहे, सो कैरेक्टर कांस्टेंट, सो कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट यूजेज सिंगल कोटेशन कैरेक्टर, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना हो, तो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन, ठीक है साची, भरपूर मेसेज येत आहेत तुझे इकडे, साइन आउट करा, वेट, ईमेल येतात का मेसेज येतात, साइन आउट काय आहे ते, इथे ओके साइन आउट, ओके साइन आउट, यस, thank you, okay now continue where we are, okay, constant, character constant is also there, A, I, P, like that we have given, that is character constant which uses single quotation, single quotes में आता है और double quotes में string आता है। now variable का scope, very important part of the variable after variable declaration, अभी मेन के अंदर हम लोग ने जो डिक्लेयर किया, इट इज अ ग्लोबल और लोकल, हेलो कैन यू टेल मी, ऑल वेरिएबल वी आर डिक्लेयर इनसाइड द मेन, दैट इज ग्लोबल और लोकल, स्कोप इज लोकल और स्कोप इज ग्लोबल, पता है आपको कुछ ग्लोबल और स्कोप के बारे में, यस, डोंट No, sir. okay fine, see that in global variable we can declare outside of the main function, so it means it can use anywhere in the any functions in that program। आप main के अलावा बहुत सारे फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो उसके अंदर स्टेटमेंट। व्हाट डू मीन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन बिल्ड अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर, वैसे ही मेन फंक्शन क्या करता है, दूसरे फंक्शंस को असाइन करता है, बट मेन के बाहर हम लोग बहुत सारे फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी वो वेरिएबल यूज होने वाला है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होने वाले हैं उसको हम लोग लोकली थोड़ी डिक्लेयर करेंगे, उसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। यानी कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो मेन के बाहर डिक्लेयर किया है int num and that variable we can use any other functions outside of the main also। याद दिया है variable has declared outside any function so it can be used by later block of the code, कोई भी ब्लॉक ऑफ द कोड प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको ग्लोबल बोलते हैं। ओके, मेन के बाहर डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल आप कोई दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं ग्लोबल। बट लोकल, लोकल मतलब मेन के अंदर डिक्लेयर किया है या किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो इट इज ओनली इनसाइड ऑफ दैट करली ब्रैकेट, वो करली ब्रैकेट के बाहर यूज नहीं होगा, उसको बोलते हैं लोकल। द वेरिएबल इज एक्सेसिव ओनली इनसाइड द पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ इन्होंने एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर int num1 और int num1 डिक्लेयर किया, असाइन किया, ये वैल्यू लोकल है,
बिकॉज ये इसी के अंदर एग्जीक्यूट होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। बट ये जो हम लोग कर रहे हैं वो इसके आउटसाइड जाएगा, लेकिन ये जो मेन के बाहर है वो आपका ग्लोबल है। ग्लोबल नंबर वन, दैट वेरिएबल वी कैन यूज एज अ ग्लोबल। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल असाइन कहाँ पे भी कोई भी ब्लॉक में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ग्लोबल। और लोकल मतलब करली ब्रैकेट के अंदर आया, उसके मेन के अंदर आया तो इट इज लोकल। गॉट इट? यस स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir. Okay. So there are two scope of the variable, that is global and local. Outside of the main you are declared, that variable we can use any other code of a blocks, but local inside the block you are declared main or inside block, so it is used for only inside the block. It cannot be used outside of the block. That is called local. ठीक है? क्लियर? ये आने वाला है आगे, फंक्शन जब होगा तब हम लोग को ये ग्लोबल लोकल के बारे में समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीधा। फाइल न्यू, नया फाइल लेता हूँ, फाइल न्यू, फाइल हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h. now I am declaring global variable, एक वेरिएबल ले रहा हूं नंबर 1 या nano1, इट इज ग्लोबल void main, और उसको असाइन भी करता हूं, एक वैल्यू असाइन करता हूं 20। ठीक है, नेक्स्ट। और एक वेरिएबल इनसाइड डिक्लेयर करता हूं int नंबर 2 और इट इज असाइन 10। ठीक है, और एक नंबर 1 इनसाइड भी डिक्लेयर करता हूं 50। ठीक है, इनसाइड भी डिक्लेयर करता हूं। अभी मैं प्रिंटफ करूंगा, प्रिंटफ कर रहा हूं मैं। ओके, नंबर 1 की वैल्यू नंबर 1 इज इक्वल टू %d और कॉमा no1। ठीक है, यस या नेक्स्ट प्रिंटफ नंबर 2 इज इक्वल टू %d और यहाँ लिख रहा है no2। ठीक है, फाइन। अभी हम लोग को वैल्यू क्या दिखा रहा है वो देखेंगे। क्लियर स्क्रीन करते हैं, लेट्स सी एच, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, कंट्रोल है अपने, वैल्यू दिखा रहा है 15 एंड 10। 15 किधर लिखा था हम लोगों ने, और 10 नंबर 1 का वैल्यू 15 दिखा है, नंबर 2 का 10। तो ये ग्लोबल है कि लोकल है, बताओ जरा। नंबर 1 वैल्यू इट इज लोकल और ग्लोबल। हेलो हेलो, सर लोकल है सर। लोकल है, राइट, बिकॉज इट इज इनसाइड जो है वही आपको वैल्यू दिखा रहा है। आउटसाइड की वैल्यू आ रही क्या? नहीं। तो अभी हम लोग आउटसाइड वैल्यू दिखाना चाहते हैं, चलो दिखा दें। प्रिंटफ नंबर 1 इज इक्वल टू %d और यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन कोलन 2 colons नंबर 1। स्कोप रिजोल्यूशन इज ऑपरेटर who can show the global value। अभी देखो, पहला नंबर 1 जो दिया वो लोकल वैल्यू था, नंबर 2 दिया 10 था, लेकिन नेक्स्ट वन मैंने स्कोप रिजोल्यूशन यूज किया तो ग्लोबल वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है, दिखा रहा है। यस, हेलो, Yes, sir. या तो स्कोप वैल्यू, स्कोप रिजोल्यूशन इज अ ऑपरेटर who can assign the who can display the value of global। नंबर 1 का वैल्यू दिखा रहा है ना, स्कोप रिजोल्यूशन 2 कोलन मतलब स्कोप रिजोल्यूशन, इट इज ऑपरेटर। इज इट क्लियर? आया क्या समझ में? यस, Yes, sir. ओके। तो मुझे बताना था कि ग्लोबल, अभी ये ग्लोबल वैल्यू किधर भी यूज हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन ऑल्सो। अगर मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, मैंने एक फंक्शन यूज किया, डिक्लेरेशन आया नहीं आपको पार्ट अभी तक, लेकिन अगर डिक्लेयर, वो एडिशन नाम का मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे भी जब भी मैं एडिशन को डिफाइन करूंगा, ओके, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ void add करली ब्रैकेट, तो यहाँ पे वो ग्लोबल वेरिएबल असाइन हो सकता है। सी दैट void add, इसके अंदर भी ये आउटसाइड मेन फंक्शन एक ब्लॉक बना रहा, इसके अंदर भी वो वेरिएबल यूज कर सकता हूं मैं। प्रिंटफ, ओके, प्रिंटफ नंबर 1 एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ये अभी तक आपका पार्ट आया नहीं, ये आगे का पार्ट है, आपको डिफिकल्ट होगा जब तक फंक्शन समझ में नहीं आता है।
स्कोप रिजोल्यूशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ नंबर 1 का, वो एक्सेप्ट होगा, और उसको मैं यहाँ पे लिखते वक्त, ये ना लिखते वक्त ऐड को कॉल करूंगा। So add is declare, add is defined, add is called। तो यहाँ देखते हैं वो ऑप्शन में आ रहा है, अभी 20। ऐसे यहाँ पे जिधर मैंने कॉल किया वहां पे वो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैंने दोबारा कॉल किया फंक्शन में तो दोबारा वो दिखाएगा, 2 बार दिखाएगा। ओके, फंक्शन इज रीयूजेबल, दैट इज अ ब्लॉक। इसको बोलते हैं मैंने ब्लॉक बनाया, और उस ब्लॉक को मैं जितनी बार चाहिए उतनी बार मैं कॉल कर सकता हूँ, दैट इज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेरेशन, फिर नीचे मेन फंक्शन के नीचे मुझे डिफाइन, और फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ा, कॉल। तो देयर आर 3 ways you have to use the function, यूजर डिफाइंड फंक्शन, डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल। तो जिधर कॉल हो रहा है आप देख सकते हो उधर स्कोप रिजोल्यूशन वेरिएबल यूज हो रहा है, मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, राइट? यस स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ग्लोबल और लोकल, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, किसी को कुछ No, sir. प्रॉब्लम? नो, ओके फाइन। सो ग्लोबल हो गया। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है एरे। ओके, एरे का कंसेप्ट है, और उसके बाद कुछ प्रोग्राम हम लोग को दिए, वो सारे प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे, और पीछे के जस्ट क्वेश्चंस आपको दिए उसका रिवाइज करवाता हूँ, एंड देन आई गो थ्रू द नेक्स्ट यूनिट। तो हम लोग जा रहे हैं एरे में। व्हाट इज एरे? ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल एरे में यूज किया है। कौन बताएगा कौन सा वेरिएबल मैंने एरे में यूज किया है? पहले प्रोग्राम, अभी के नहीं, पहले प्रोग्राम कौन बताएगा? फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने एरे यूज किया था। सर वो 20 है ना वो। Yes, 20. That is means name1 is a array variable. It is not a normal variable. It is a array variable where we can store the 20 characters. Okay, where we can store the 20 characters. Square bracket में जो 20 दिया है name1, char name1, क्योंकि char name1 अगर दिया तो only single character it will store. But अगर name1 अगर square bracket में 20 दिया तो we can store 20 characters. सर 20 के ऊपर रहेगा तो क्या आ जाएगा, एरर? एरर, हाँ एरर आएगा ऑफ कोर्स। अगर मैंने 20 के ऊपर दिया, सपोज इसी प्रोग्राम में अगर मैंने 20 कैरेक्टर के ऊपर दे देता तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, ज्यादा हो गया अभी, चलो कंपाइल कर रहा हूँ। एरर आ गया, क्या दिया? टू मेनी इनिशियलाइजेशन, एरर आया हुआ है, देखो एरर दिखा रहा है, टू मेनी इनिशियलाइजेशन। यस सर। ठीक है, आए समझ में? तो इट इज मैक्सिमम। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, एरे का साइज चेंज करना पड़ेगा। एरे का साइज सपोज मैंने लिया अभी 100, तो 100 अभी एक्सेप्ट करेगा। यस, अभी एक्सेप्ट कर रहा है। गॉट इट? नाउ यू अंडरस्टूड? हेलो, यस। वो एग्जैक्ट नहीं देना सर, दे सकते हैं ना सर, कितना भी दे सकते हैं कितना ना? भी आप ले सकते हो। अगर अनलिमिटेड लेना है तो ब्लैंक छोड़ो, वो अनलिमिटेड लेगा, जितना आप साइज दोगे उतना आएगा। एरे की साइज अगर स्पेसिफाई नहीं की तो जितना साइज है उतना वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट एरे की साइज अगर स्पेसिफाई की तो उतने कैरेक्टर तक हम लोग इंक्लूड है, तो उतना साइजिंग आपके प्रोग्राम में लगने वाला है। आए समझ में? जितने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उतने वेरिएबल की साइज आपके प्रोग्राम में इंक्लूड होती है। 2 बाइट फॉर इंटीजर, 4 बाइट फॉर फ्लोट, तो आपका प्रोग्राम का साइज भी बढ़ते जाता है। कंपाइल मतलब फाइल साइज, आई सेड अबाउट फाइल साइज। गॉट इट? हेलो, यस सर। ओके फाइन। सो व्हाट इज एरे? चलो एरे के बारे में चालू था, तो व्हाट इज एरे? व्हाट आई सेड अबाउट द एरे? एरे है क्या? तो एरे है आपका, it is a group of related data values called elements that are grouped together as a one value। इसका मतलब एक सिंपल बताता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं बताऊंगा। एरे, इट इज अ वेरिएबल who can store more number of values, okay, with using identical data elements। okay, एक टाइप का, जैसे एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज बताया, तो रिलेटेड डेटा वैल्यूज मतलब जैसे INT डिक्लेयर किया तो हम लोग इसी के अंदर INT डिक्लेयर, सपोज हम लोग ने एरे, यहाँ एग्जांपल में देखो INT my array 10 दी है, इसका मतलब 10 नंबर्स वी कैन स्टोर with the one variable। what is the variable name? my array। okay,
मैं आपको नोटपैड में चालू करके आपको उसका स्पेसिफिकेशन देता हूँ। सपोज देखो स्पेसिफिकेशन देखो, अगर मैंने इस तरह डिक्लेयर किया int my array, या मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ I in the square bracket 10, okay, semicolon. When I declare like that, so I in the bracket 0 इंडेक्स से एक वैल्यू स्टोर होगा, कोई भी एक वैल्यू ले लो. अगेन I in the bracket 1, दिस इज इंडेक्सिंग पार्ट, मैं दूसरा वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ. I in the bracket 2 इज इक्वल टू और कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ. ऐसे कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? ऐसे कितने वैल्यू मैक्सिमम? 9. 9 नहीं, 10 वैल्यूज. हाँ 10 सर, 0 हाँ, से है ना. 0 से स्टार्ट किया तो भी 10 ही वैल्यू होगा ना, 0 to 9. हाँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बट वैल्यूज कितने स्टोर करेगा वो? 10, क्योंकि आपने एरे का साइज क्या दिया है? 10, तो 10 एलिमेंट्स वी कैन स्टोर. इसी तरह हम लोग कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? टोटली 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ऐसे. हाँ, इंडेक्सिंग नंबर 0 to 9 आएगा, 0 to 9, दैट इज क्लियर. ओके, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, देखो मैं ऐसे स्पेसिफिक जानबूझ के नोटपैड में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. 22, okay, then next I in the square bracket 7, I can store over there any number. Then I in the square bracket 8 is equal to, I can store any number, और last number now 10th number, but indexing क्या उसका होगा? 9. इंडेक्सिंग 9 है क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से हो रहा है, लेकिन 10th वैल्यू हमारा 9 पे आ रहा है. कोई भी नंबर रखो, ये इट इज असाइन्ड लाइक. गॉट इट? यस स्टूडेंट. और इंडेक्सिंग आप देख सकते हो एक नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 अगेन 1. इसी का मतलब बुक में भी वही स्पेसिफाई किया है उन्होंने, 0 to 9, 10 नंबर, दैट इज 0 to 9. मतलब ऐसे 10 बॉक्स बनते हैं. जैसे रैम मेमोरी में भी आप जब कोई फाइल सेव करते हो तो उसके अंदर उतने साइज का बॉक्सेस बनता है और एक एक बाइट उसके अंदर स्टोर हो जाता है. एक बाइट 8 बिट्स, तो 8 बिट्स ऐसे स्टोर हो जाएंगे. 0 0 0 1 0 1 0, like that they store all that value in that boxes and again go to the next, go to the next, go to the next, like that box will store. 10 numbers हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. अगर 100 दिया तो 100 बॉक्स बनेगा, 0 to 99. अगर हम लोग ने अगर 20 दिया तो 0 to 19. गॉट इट? यस स्टूडेंट. लेकिन वेरिएबल का नाम चेंज हुआ क्या? वेरिएबल का नाम एक ही था, I. तो one variable can store many values when you are using array. Okay, आपको पता तो है. सर जब भी वेरिएबल आई के जगह पे मतलब कुछ और लिखेंगे तो उसको कुछ और लिखना पड़ेगा ना? Yes, of course. It is a variable declaration. अगर मैंने यहाँ no1 लिखा है तो no1 में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है? no1 में क्या स्टोर हो रहा है बताओ? 45 स्टोर हो रहा है. अगर मैंने Yes. एरे दिया 5, तो कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 5. तो मैं ऐसे करली ब्रैकेट में तो 45, 47, 48, 49, 52, ये कितने वैल्यू स्टोर किए मैंने अभी? 5. That means number 1 0 assigns the 45, number 1 assigns the 47, number 1 स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे मैंने स्पेसिफाई किया था. नंबर 1 2 स्टोर द, बोलो 48, नंबर 1 3 स्टोर द 49 एंड नंबर 1 4 स्टोर द 52, 0 से 4 तक. गॉट इट? यस स्टूडेंट. यस सर. आया समझ में? तो दिस इज द वे वी कैन स्टोर द वैल्यूज. तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर असाइन करते हैं. तो हमारा एक एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं इधर. देखो यहाँ देखो 10 वैल्यू असाइन किया, लेकिन हम लोग ने 10 वैल्यू का एरे डिक्लेयर किया बट 2 वैल्यू वाले असाइन किया. चल देगा ना? ऐसा चल सकता है. बॉक्सेस 10 बनाए, वैल्यू स्टोर कितना किया? 2. तो आफ्टर दैट 8 वो है, इट विल कंटेन गार्बेज क्योंकि उसका नल वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं. तो आफ्टर दैट इट बिकम्स नल वैल्यू मतलब गार्बेज. तो आफ्टर एन एरे इज डिक्लेयर इट मस्ट बी इनिशियलाइज एल्स इट विल कंटेन गार्बेज. तो यहाँ देख सकते हो 10 का एरे डिक्लेयर किया है लेकिन वैल्यू असाइन किए 2,
तो इसका मतलब 8 वैल्यू जो 8 साइज थी उसकी एरे की वो क्या होगी, गार्बेज। इट इज क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। ओके। तो एरे इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर इनिशियलाइज नहीं किया, आपने साइजिंग दिया है 10 और 2 ही यूज किया, 2 नंबर के लिए ही यूज किया, तो बाकी 8 बॉक्सेस का क्या होगा, 8 बॉक्सेस गार्बेज ब्लैंक बनेंगे। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट आइदर कंपाइल टाइम और एट रन टाइम, दोनों वे हो सकते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल करते हुआ या रन टाइम में पहले से हम लोग जब यूजर को एंटर करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे तभी। So there is a no assignment operator between constant name value and there is a no semicolon at the end of the statement. Okay, वहाँ दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बाद में आएंगी, यहाँ पे कंफ्यूजन किया हुआ है, वो बाद में देखते हैं। कंस्टेंट वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब आने वाला है आगे के टॉपिक में, यूनिट 2 में, तो वहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा, अभी नहीं। चलो अभी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। लास्ट टाइम ये प्रोग्राम हो चुका था। प्रोग्राम किसका था? एरिया ऑफ सर्कल हुआ था। यस सर। वापिस एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये प्रोग्राम में क्या किया, वी आर डिक्लेयरिंग द हेडर फाइल, INT मेन लिया है, तो इसका मतलब रिटर्न 0, रिटर्न कीवर्ड आने वाला है, तो रिटर्न इट शुड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। फ्लोट आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना सबको? फ्लोट आर मतलब रेडियस डिक्लेयर किया है, R1 ओके, R1 भी लिया हुआ है, तो R1 में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद डबल पाई वैल्यू डिक्लेयर किया है, कंस्टेंट 3.14। यूजर को बता रहे हैं एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, यूजर एंटर कर रहा है फ्लोट में एंड आर मतलब असाइन। R1 में आंसर निकाले, एरिया निकाल रहे हैं। व्हाट इज द एरिया? पाई इंटू आर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर दिखा। एक्चुअल में हम लोग देख लेते हैं, प्रोग्राम में भी करके भी दिखा देते हैं। रिवाइज हमेशा प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम 2-3 बार करो तो दिमाग में बैठ जाता है, फिर वापस आप भूलोगे सर ये सी कंपाइल में कोड कॉपी पेस्ट नहीं होता है? नहीं करने का। मतलब होता है कि नहीं ये सब? नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन करने का इसमें नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा नोटपैड में, सेव करना पड़ेगा एक्सटेंशन विद .c और फिर यहाँ पे उसको ओपन करना। इज इट क्लियर? ओके ओके, तो डोंट ट्राई टू डू इट, बिकॉज मैं पहले स्टूडेंट को बेस लेवल में टाइपिंग का ही सलाह देता हूँ, क्योंकि एरर आपको कभी पता चलते हैं जब यूजर एंटर सम कोड, तो यूजर को पता चलते हैं मेरे स्पेलिंग मिस्टेक, मेरे सिंटैक्स एरर, मेरे ये सारे जो भी कोडिंग के एरर, वो कब पता चलते हैं? जब आप खुद टाइप करो। कॉपी पेस्ट करोगे मतलब आपने रेडीमेड प्रोग्राम उठा के डाल दिया। इज इट राइट? इज इट राइट? इसलिए मैं प्रेफर पहले करूंगा। हाँ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, पूरा सी समझ में आया, बाद में आप करो ना नोटपैड से कॉपी पेस्ट करके, मैं भी करूंगा वो, उसमें क्या फर्क है, आगे आएगा। मैं अभी के स्टूडेंट को TY को मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट बताता, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी में लिखना पड़ता है, तब हम लोग को मिस्टेक समझ में नहीं आती, कंपाइलर हमारे साथ में नहीं रहता है, तो थ्योरी में हम लोग को डिफिकल्ट हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो थ्योरी में हम लोग को विदाउट दिस कैन यूज इट। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग को क्या बताया था प्रोग्राम में उन्होंने फ्लोट लिया था, फ्लोट आर, और मैं एरिया लेता हूँ R1 की जगह, और क्या दिया था उन्होंने? फ्लोट के बाद बोला प्रिंट है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो करते हैं अभी डायरेक्टली, कंट्रोल एंटर, प्रिंट /n, क्या बताना है? एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, स्कैनअप क्या करेगा? एक्सेप्ट। अभी देखो आप लोग सब लोग स्कैनअप कैसे यूज करेंगे। स्कैनअप फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करना है, तो %f ओके, कॉमा आर के वेरिएबल में स्टोर करना है, आर एंड आर आएगा। कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो उसके आगे % आएगा, एंड आर। स्कैनअप हो गया। अभी कैलकुलेटिंग पार्ट, एरिया, लेकिन एरिया के लिए पाई वैल्यू लगने वाला है, तो पाई वैल्यू मैंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या करोगे यहाँ पे? कंस्ट डबल पाई, कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल नेम कैन कैपिटल और स्मॉल, नो इश्यू। 3.14, उसके बाद यहाँ पे ही वही वैल्यू ले रहा हूँ पाई, ठीक है, इनटू
into asterisk sign, r into again r सेमीकोलन. एरिया कैलकुलेट हो गया, अभी डिस्प्ले करना है. प्रिंट एफ स्लैश एन अगेन स्लैश एन और लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज, डिस्प्ले होगा आपका आंसर परसेंटेज एफ में, मतलब फ्लोट में. डिस्प्ले क्या होगा, एरिया. अभी एंड लिखने की जरूरत नहीं, प्रिंट एफ में एंड नहीं, स्कैन एफ में एंड होगा व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. गेट सी एच curly bracket. Now कंट्रोल F9. क्लियर स्क्रीन नहीं किया था, चलो क्लियर स्क्रीन करते हैं. क्लियर स्क्रीन, इसलिए पहले वाला आउटपुट दिखा रहा था. क्लियर स्क्रीन. नाउ कंट्रोल F. क्या हो रहा है, 578.5 आंसर आ रहा है. यस स्टूडेंट, हेलो, गॉट द आंसर. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अगेन दिखा रहा हूँ. कंट्रोल F9. एंटर एनी रेडियस ऑफ अ सर्कल. यूजर ने पूछा कोई भी रेडियस ऑफ सर्कल डालो, एंटर करो, उसका आंसर आपको एरिया ऑफ सर्कल दे रहा है. जस्ट लाइक दैट प्रोग्राम. क्या किया प्रोग्राम में, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. वेरिएबल डिक्लेरेशन, यूजर फ्रेंडली, गिव द मैसेज व्हाट यू वांट टू इनपुट, स्कैनफ टू इनपुट द वैल्यू बाय द यूजर, कैलकुलेशन प्रोसेस, इनपुट के बाद प्रोसेस, कैलकुलेशन हुआ, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, डिस्प्ले आउटपुट, show the output whatever we store it in the variable. Area of circle is percentage of area. Got it? Yes student. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, how to save the file, press F2, then you can write here. यहाँ C का प्रोग्राम है तो यहाँ C में ही स्टोर करते हैं. एरिया ऑफ सर्कल without space dot C. You can store it in now at present in the TC bin. आप फोल्डर चेंज कर सकते हो if you want. ओके, टैप की करके या किधर जाना है, कौन से फोल्डर में स्टोर करना है, एग्जांपल्स, तो वहां पे भी आप कर सकते हो. जिधर जाना है उधर आप स्टोर कर सकते हो. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्लिक ऑन ओके, दैट मींस सेव एरिया ऑफ सर्कल. ओके, तो सेव हो गया टीसी के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर. ऊपर आपको 5 लोकेशन दिखा रहा है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट न्यू. आगे क्या प्रोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल हो गया. अभी आगे क्या दिया है उन्होंने, राइट टू प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स. इसके लिए मुझे क्या लगेंगे, 2 नंबर. ओके, दे आर पुटिंग द कांस्टेंट नंबर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे मालूम है, यूजर को एंटर करने को लेंगे. ठीक है, देन 2 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 2. फिर कैलकुलेशन में रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 1 में एडिशन, रिजल्ट 2 में सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट 3 में मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट 4 में आपका डिवीजन, और इट शुड रिटर्न द वैल्यू. ऐसे दिखाना है, और ऑल आर इंटीजर. ठीक है प्रोग्राम, चलो देख लेते हैं प्रोग्राम. नाउ हैश इंक्लूड std io.h hash include conio.h void main. इंटीजर भी ले सकते हैं, इंटीजर लिखा तो इट शुड रिटर्न इंटीजर. int that is number 1 comma number 2 comma result 1 comma result 2. या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, add, subtract, multiplications, डिवीजन. ऐसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे. ओके, मैंने num1 लिखा है तो num1 लिखना, ऐसा कुछ जरूर नहीं. n1 n2 आपके हिसाब से आप वेरिएबल, तो वेरिएबल के रूल्स है कैसे डिक्लेयर करना है. इट शुड स्टार्ट विद द अल्फाबेट, you can include the number and underscore, you cannot use any other symbol, you don't give any space, it must not be any keyword. ये सारी चीजें आपको रूल बता रही how to declare the variable. Okay, then clear screen. After that we are giving the message to the user, enter number 2 integer numbers, 2 integer, हम लोग एक साथ कर रहे हैं, integer numbers. ओके, मैसेज दिया, स्लैश एन करके देना है तो स्लैश एन दे सकते हो, अदरवाइज गो ऑन नेक्स्ट. सॉरी, देन स्कैनअप में क्या करना है, वैल्यू एक्सेप्ट करना है. तो
तो कॉमा, दो इंटीजर कौन से हैं, एंड n1 कॉमा एंड n2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर ने एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस ऐड इज इक्वल टू n1 प्लस n2 सेमीकोलन। देखो मैं मेरा खुद का वेरिएबल लेके भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐड करना, नेक्स्ट n1 माइनस n2, देन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू n1 इंटू n2, डिविजन इज इक्वल टू n1 डिवाइड n2, हो गया। अभी डिस्प्ले प्रिंट है, डिस्प्ले क्या करना है, स्लैश n एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज परसेंटेज डी, और वहां पे दिखाने क्या वाला है, ऐड, जो एडिशन में स्टोर है, ओके एडिशन में स्टोर है। ऐसे ही मैं कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट फॉर व्हाट, कॉपी, एंड शिफ्ट इंसर्ट फॉर पेस्ट। वे एडिशन की जगह में क्या लिखूंगा बताओ, इधर सब्ट्रैक्शन, ओके, और ये ऐड की जगह क्या आएगा, एसयूबी, एसयूबी में हमारा सब्ट्रैक्शन, फिर शिफ्ट इंसर्ट, सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे लिखूंगा अगेन मल्टीप्लिकेशंस, ओके, लास्ट में आएगा MEL जहाँ पे आंसर स्टोर है, फिर क्या आएगा अगेन शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की जगह अभी डिवीजन, ओके, फिर लास्ट में आएगा DIV, ओके, हो गया। अगेन नाउ गेट सी, हो गया हमारा प्रोग्राम। यस स्टूडेंट, यस Yes, sir. ओके, प्रोग्राम खत्म। देखो मैंने मेरे तरफ से मैंने क्लियर, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया है बुक में इसलिए वैसा ही स्टेप्स आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यू थिंक अबाउट इट, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, गिव द मैसेज टू द यूजर व्हाट, एंटर द वैल्यू, स्कैनर इनपुट हो गया, फिर प्रोसेस एंड देन आउटपुट। ये तीन स्टेप में ही आपको जाना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नाउ कंट्रोल F9, दो इंटीजर कोई भी दो नंबर दे दो, सपोज मैंने दिया 45 और यहाँ पे दिया 8, एंटर, आंसर रेडी है। 45 प्लस 8 53, 45 माइनस 8 37, 45 इंटू 8 360, 45 डिवाइड बाय 8 9 5, इट इज पॉसिबल, 8 5 जा, हाँ बराबर पॉइंट में आया। अभी देखो प्रॉब्लम, पॉइंट में आंसर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बराबर ना। यस स्टूडेंट, हेलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ्लोट पे ऐड करना पड़ेगा। यस वेरी गुड, यहाँ सेमीकोलन कर रहा हूँ, यहाँ मैं फ्लोट, देखो थोड़ा मॉडिफिकेशन फ्लोट दे रहा हूँ, यहाँ परसेंटेज डी बराबर है, तो यहाँ पे मैं सारे फ्लोट लेता हूँ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, और यहाँ पे भी परसेंटेज है, और यहाँ पॉइंट में देना है, तो पहले डायरेक्टली देख लेते हैं फिर पॉइंट। नाउ 45 अगेन 45 और 8 सारे डेसिमल पॉइंट में आ गए, 53 पॉइंट, लेकिन कितना डेसिमल, 5 डेसिमल। अभी मैं दे रहा हूँ 0.2 डेसिमल, 0.2 डेसिमल, 0.2 डेसिमल, 0.2, लेकिन आंसर में भी इंटीजर नहीं एक्सेप्ट किया, तो हम लोग को क्या देना चाहिए था इधर, फ्लोट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फ्लोट फ्लोट। चलो अभी देखते हैं 45 एंड 8, अभी एग्जैक्टली आंसर आ रहा, दो 53 37 360 एंड 5.62, राइट। यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। या कैसे किया मैंने, नंबर वैल्यू जो इनपुट हो रहा है उसको भी फ्लोट किया, जो आंसर स्टोर रह रहा है उसको भी फ्लोट किया, और फिर नीचे सारे परसेंटेज एफ किया, और अब डेसिमल पॉइंट कम करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, परसेंटेज के बाद 0.2, दैट मीन 2 डेसिमल, 0.2 0.2 एफ 0.2 एफ 0.2 एफ। इज इट क्लियर, ये स्टूडेंट, यस सर। Yes, sir. या ओके। तो ये प्रोग्राम मैं प्रिंट स्क्रीन करके आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, पहला वाला भी प्रोग्राम भेज रहा हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, ओके, आगे कंटिन्यू। प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ।
दैट इज एरिया एडिशन होगा। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल का भी भेज रहा हूँ। ओके, F6 ये हुआ मेरा एरिया ऑफ सर्कल। नहीं, किधर है? नहीं, एरिया ऑफ सर्कल किधर है? अच्छा, यहाँ ये है मेरा एरिया ऑफ सर्कल। प्रिंट स्क्रीन। दो प्रोग्राम मैंने भेज दिए और वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी भेजता हूँ ताकि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में। सॉरी, F6 एंटर, ये पूरा है वेरिएबल डिक्लेरेशन साइज ऑफ के साथ। तो आपके अंदर मैंने जानबूझ के आपको प्रोग्राम भेज रहा हूँ ताकि आपका अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उससे इंक्लूड करके देख सकते हैं। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आना, इसको ऑफ कर। ओके, या प्रिंट स्क्रीन। तीनों प्रोग्राम मैंने भेज दिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी नेक्स्ट ये हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अभी हुआ स्वैपिंग। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। दो नंबर हम लोग को स्वैप करने को प्रोग्राम दिया है और यहाँ पे सिंपल वे उन्होंने बताया, विदाउट फंक्शन, वेरी सिंपल। ओके, तो देखो आप प्रोग्राम में क्या है बताओ। The declaration of the header file first, then int number 1, number 2. Then we have to enter the two numbers. Before swap, we have to show that numbers. लेकिन after swap, मुझे बताओ 20 अगर हम लोग ने नंबर डाला, दूसरा नंबर डाला 10। ओके, नंबर 1 में 20 है, नंबर 2 में 10। मुझे स्वैप का मतलब है नंबर 1 का वैल्यू नंबर 2 का असाइन होना चाहिए और नंबर 2 के अंदर नंबर 1 का, उसी को बोलते हैं स्वैप, एक दूसरे से स्वैप करना। तो यहाँ पे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है, लॉजिक क्या लेना पड़ रहा है, एडिशन। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 31, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा नंबर 2 के अंदर, तो उसके अंदर नंबर 1 माइनस नंबर 2 करूंगा तो सब्ट्रैक्ट वाला वैल्यू नंबर 1 का वैल्यू बन जाएगा। वैसे ही नंबर 1 का वैल्यू नंबर 1 माइनस नंबर 2 करूंगा तो स्वैप, मतलब वो 20 नंबर 2 में आएगा, नंबर 1, उसे बोलते हैं स्वैप। तो ये सिंपल वे दे आर यूजिंग दैट स्वैप प्रोग्राम, वो प्रोग्राम हम लोग देख लें। चलो, now again new program, F5 hash include stdio.h hash include conio.h void main। ओके, एंटर। अभी ना दो नंबर एंटर करने, एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, देन आफ्टर दैट printf एंटर, यूजर को बोलेंगे एंटर एनी टू इंटीजर्स नंबर या टू इंटीजर्स। ओके, देन आफ्टर दैट स्कैनअप, स्कैनअप में दो नंबर एक्सेप्ट करेंगे, %d अगेन %d और एंड n1 एंड n2। ठीक है, अभी दो नंबर को बिफोर स्वैपिंग वी शो दैट नंबर, हम लोग लिखते हैं उधर /n before swap। okay, before swap we show that number, printf /n %d डिस्प्ले, ऐसे लिखेंगे नंबर 1 इज इक्वल टू %d अगेन /n या /t दे सकते हैं, नंबर 2, t मतलब टैब, नंबर 2 इज इक्वल टू %d और डिस्प्ले करेंगे कॉमा n1 कॉमा n2 दोनों एक साथ बिफोर स्वैप। अभी स्वैपिंग करना है तो नंबर 1 हम लोग को अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड करें, नंबर 2 के अंदर नंबर 1 का वैल्यू क्या करना है, माइनस। ओके, देन बराबर ना, ऐसे ही दिया है, देखो नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर नंबर 2 में नंबर 1 माइनस नंबर 2। अभी नंबर 1 का वैल्यू वापिस जो भी आंसर आया है नंबर 1 में स्टोर हुआ है और नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो दोनों वैल्यू स्टोर हो गया। अभी आफ्टर स्वैप हम लोग को वैल्यू दिखाना है, इसलिए दो स्टेटमेंट शिफ्ट की से मैंने सिलेक्ट की है और कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट से मैंने पेस्ट किया। अभी मैं दे रहा हूँ आफ्टर स्वैप, ठीक है,
हो गया, गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म, सेमीकोलन कर दो। देखते हैं, क्लियर स्क्रीन नहीं किया, चलो क्लियर स्क्रीन नहीं किया, बाहर आ, पहले जाते हैं क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, चलो कंट्रोल F9। Now give the two numbers 20 10, number 1 is 20, number 2 is 10। तो पहले बिफोर स्वैप में नंबर 1 का वैल्यू 20 था, नंबर 2 का वैल्यू 10 था, लेकिन स्वैप होने के बाद नंबर 1 का वैल्यू बना 10, नंबर 2 का 20, राइट? यस स्टूडेंट, Yes, sir. यस सर। Yes, हो गया? sir. क्या लॉजिक यूज किया उन्होंने? ये है लॉजिक, प्रोसेसिंग पार्ट। नंबर 1 के अंदर 10 प्लस 20 प्लस 10 30 हुआ, फिर नंबर 2 में 30 माइनस 10 कितना हुआ? 20। तो नंबर 2 में आंसर मिल गया 20। आगे 20 माइनस नंबर 2, सॉरी नंबर 1 था 30, तो 30 माइनस नंबर 2 10, तो आंसर मिल गया 10। सॉरी नंबर 2 में 20 था, तो 30 माइनस 10 आ गया, तो नंबर 1 में क्या आ गया? 10। इस तरह लॉजिक लगा के उन्होंने स्वैपिंग किया। कोई भी नंबर ले, सपोज हम लोग लेते हैं 5 and 2, 5 plus 2 7, then 7 minus 5 2, and after that उन्होंने नंबर, तो 7 minus 5 2 और 7 minus 2 5, तो दोनों का आंसर मिल गया। Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so that is the logic they are using over there, and this is the program. It is related to save the file. क्या related है? Swap. Swap dot c। चलो इसको भी मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और भेज देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन और आपके व्हाट्सएप पे वो चला गया। एंटर। फाइन, ओके चलो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। एक प्रोग्राम के अंदर तीनों पार्ट आपको करना है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट। तीनों चीजें, तीनों के फॉर्मूला आपके मालूम होने चाहिए, लेकिन फिर भी इधर दिया है देखो, पाई आर स्क्वायर, ओके, सी साइड बाय साइड स्क्वायर, दो साइड, और उसके बाद दिया रेक्टेंगल के लिए a into b, that means base and height। चलो तीनों देखते थे प्रोग्राम, तीनों में क्या किया है उन्होंने? पहले एंटर है, ए माही गो, या enter radius of a circle, okay, enter one side of a square, enter base and height of the rectangle, and after that they make the calculation and show them। Is it clear? चलो देख लेते हैं प्रोग्राम, ये भी कंप्लीट करते हैं फटाफट। फाइल न्यू F5 हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लगने वाला है? रेडियस, उसके बाद क्या लगने वाला है? हेलो, आफ्टर दैट रेडियस, उसके बाद साइड सी, फिर उसके बाद क्या लगने वाला है? साइड, और क्या लगने वाला है? हाइट। ओके, हम लोग वैसे ही स्पेसिफाई करते हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी क्या है, टू गिव द आर फॉर रेडियस, साइड फॉर एस, बेस फॉर बी और एच फॉर हाइट, और फिर कैलकुलेशन। पहला किसका एरिया चाहिए? सर्कल एरिया। सर्कल एरिया के लिए सी लेते हैं, स्क्वायर एरिया के लिए एस क्यू, नहीं तो लिखते हैं सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल आर ई सी। ठीक है, नाउ क्लोजिंग। हम लोग हमारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था? बुक के हिसाब से मत जाओ, स्पेसिफाई करो ताकि आपको इजी होगा। नाउ प्रिंटर क्या देना पड़े था? एंटर पहले देना था, एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो स्कैनअप होगा। स्कैनअप में क्या आएगा? पहले परसेंटेज फ्लोट लेते हैं, इंटीजर भी नहीं लेते, फ्लोट, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो परसेंटेज एफ एंड क्या डालना है? रेडियस, पहला वैल्यू इनपुट की। चलो ऐसे ही नेक्स्ट प्रिंट एफ
क्या लिखना है हम लोग को? साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड एंटर स्लैश एन साइड ऑफ अ स्क्वायर। सर पाई की वैल्यू नहीं दी आपने। हाँ दे कांस्टेंट कंस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं ना, कंस्टेंट कंस्टेंट राइट, पी आई वैल्यू देना है, कंस्टेंट डबल डबल पी आई इज इक्वल टू 3.1। ठीक है, चलो स्क्वायर स्कैन एफ। अभी यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर लिखना है तो एस परसेंटेज एफ स्लैश एन में, ठीक है, परसेंटेज एफ और यहाँ देते हैं एंड एस। ठीक है, आगे अभी नाउ प्रिंट एफ बेस एंड हाइट स्लैश एन बेस एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बेस एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो स्कैन अप करेंगे, दो स्कैन अप आएगा। क्या आएगा? परसेंटेज एफ फॉर बेस, अगेन परसेंटेज एफ फॉर हाइट एंड बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइट। हो गया। अभी कैलकुलेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए क्या कैलकुलेशन है? तो पी आई इंटू आर हो गया सर्कल का एरिया। अभी स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया के लिए साइड बाय साइड तो एस इंटू एस। उसके बाद रेक्टेंगल के एरिया के लिए, रेक्ट के लिए क्या है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बेस, क्या था फॉर्मूला? क्या है? हेलो, फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हम लोग जाते हैं इंटर बेस इंटू हाइट, बेस रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हो गया। फॉर्मूला तो आपको बाहर नहीं करना है, फॉर्मूला जैसे देंगे वैसे ही उसको कन्वर्जन करने आना चाहिए। आई हैव डन दैट ऑल पार्ट, इनपुट प्रोसेस नाउ आउटपुट। printf स्लैश एन एरिया ऑफ सर्कल इज आंसर परसेंटेज एफ, इधर आंसर स्टोर हुआ है सर्कल सेमीकोलन। अगेन printf स्लैश एन एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटेज एफ और एरिया स्टोर हुआ है स्क्वायर के। नेक्स्ट printf स्लैश एन एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज एफ और रेक्ट। हो गया। गेट हो गया प्रोग्राम। स्पेलिंग Yes. मिसमैच हो रहा है स्क्वायर का, किसका? स्क्वायर का स्क्वायर का किधर मिसमैच हो रहा ऊपर है? प्लॉट में। फ्लोट में, यस राइट, स्क्वायर, वेरी गुड, स्क्वायर, ये हुआ स्क्वायर, बराबर है। ओके, नाउ कंपाइल। एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल 5, साइड ऑफ अ स्क्वायर 7, बेस एंड हाइट 5 and 3। एंटर। सारा आंसर्स रेडी है। एरिया ऑफ सर्कल 78.5, एरिया ऑफ स्क्वायर 49, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। फाइंड टू। यस यस स्टूडेंट, यस सर। ओके। और डेसिमल अगर कम करना है तो यहाँ पे आफ्टर परसेंटेज वी हैव टू गिव 0.2 एंड 0.2, तो डेसिमल भी कम। नाउ एरिया ऑफ सर्कल 8, साइड ऑफ स्क्वायर 9 और बेस एंड हाइट सपोज 7 and 9। ठीक है। यस स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, यस सर। ओके ओवर। सो अगेन आई जस्ट प्रिंट स्क्रीन, इसको भी प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और स्क्रीन करता हूँ। प्रिंट स्क्रीन, और ये भी प्रोग्राम आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आपके सारे प्रोग्राम्स आपके हो गए, इज इट राइट? अभी आगे आप ये प्रोग्राम घर पे खुद करोगे, क्यूब स्क्वायर एंड सिलेंडर। ओके, उसका फाइंड आउट आंसर आप घर पे खुद करोगे और कंप्लीट करोगे। तो सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट इट इज कंप्लीटेड, आई डिक्लेयर सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड, सेकेंड यूनिट स्टार्टेड। ओके, सेकेंड यूनिट का जस्ट इंट्रो दूंगा और फिर आप पहले अटेंडेंस दोगे। चलो अटेंडेंस दो फटाफट। अभी गिव मी अटेंडेंस।
रोल नंबर 1 Six. to 10. 6. 6. Sir, 7. Sir, 2. 6, 7, 2. आपके सामने स्क्रीन है, आप बता सकते हो। 2, 6, 7 आगे 2 हो 2 गया। को प्रेजेंट तो कर। अच्छा 2 सर 5 रोल नंबर 5 5 है, 4 नहीं है। 2 हो गया। 2 नेक्स्ट 2, देन आफ्टर दैट 5, 6, 7 आगे 11, 11, 16. 16, 14 14, 11. 19. 11 हो गया। 15, यस सॉरी 14 एंड 16 हो गया। 19 19. या आगे 4 ओके 4 आगे 19. 19 हो गया। आगे 21, sir. 21, 23. 23 आगे हेलो 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 यस हेलो। सर, मेरा नाम नहीं है। तेरा नाम नहीं है तो अभी हम लोग डाल देंगे। हाँ। कौन सा है? 18. बोलो नाम क्या है? 18 हो गया। नितेश 18 गुप्ता, पूरा नाम बोलू? हाँ पूरा नाम। 45 बोलो जल्दी। गुप्ता नितेश। गुप्ता अभी एडमिशन लिया। गुप्ता नितेश। हाँ। आगे जोगेंद्र। जोगेंद्र। AR DAR ER AR जोगेंद्र। ओके हाँ। अर्चना। ओके फाइन। ये आपका हाँ। रोल नंबर आपको पता है? 28। ओके फाइन। चलो नाउ सर ये हमारा एक्चुअल रोल नंबर है। ये अभी तक हम लोग को 27 तक कंप्लीट दिया था। अभी ये नए स्टूडेंट्स का मैंने एंटर किया, वो मुझे मालूम नहीं है। आपको सेक्शन से कंफर्म करना चाहिए था। आपका 28 ही है ना, उधर देख लेने का। जब एंटर करते हो ना वैल्यू, वहां पे जो एडमिशन Sir, लेते I हो was सर present in बता। the first lecture as well. ये तो फर्स्ट लेक्चर से हो रहा है सर ऐसा तो। फर्स्ट लेक्चर से ऐसा हो रहा है मतलब? हेलो मतलब आपने ये सिर्फ नाम लिखा है ना ऐसे कि कौन कौन बच्चे हैं। नहीं, वो मैंने पुट किया हुआ है। ये नाम मैंने नहीं लिखे, मुझे लिस्ट आया हुआ है। अच्छा और लिस्ट मैंने है। खुद हाँ उसके हिसाब से नहीं कर। Sir, I was present in the first lecture as well. वो नितेश 7 roll number, sir. रोल नंबर 7। ओके दैट आई कैन पुट इट 7 हियर। ओके फाइन। चलो आगे और कोई है? चलो नेक्स्ट। नाउ एनी डाउट? नाउ टुडे 12 स्टूडेंट्स आर देयर गिवन, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना? यस सर। तो किधर गए? सो गए फोन रख के वापस। 12। अरे 2 स्टूडेंट्स का नाम मुझे स्पेसिफाई नहीं है अभी भी। कौन है देखो? सर कितने शिंदे हैं? सोमेश शिंदे सोमेश प्रेजेंट। आगे बोलो जल्दी। 2 स्टूडेंट्स और भी बाकी है। अटेंडेंस यहाँ 15 दिखा रहा है, मतलब मेरा छोड़ के 14। आगे किधर है? आनंद है, फिर ऋषि है, नेक्स्ट सिद्धार्थ नायर सिद्धार्थ है, अभिषेक कौन है? ये मोनिशा है। चलो नेक्स्ट और कौन है पार्टिसिपेंट देखता हूँ मैं। अभिषेक के बाद कौन है? आकाश, सिद्धार्थ, आकाश, अर्णव, आकाश 84 किया हुआ। फिर उसके बाद दीक्षांत, अर्णव है, दीक्षांत भी है, अर्णव भी है। नेक्स्ट दिलीप जायसवाल, जे। अच्छा दिलीप जायसवाल तेरा नाम है या? अरे प्रेजेंट नहीं बोलेगा क्या? दिलीप जायसवाल हो गया। आगे कौन है? फिर जिशान है, नितेश गुप्ता हो गया, प्रियंका राठौड़ प्रियंका है,
नेक्स्ट प्रियंका पटवा है। नेक्स्ट वन और कौन रह गया? शेख शाहनवाज एंड सोमेश शिंदे। ये देखो, सोमेश शिंदे भी आ गया, शेख शाह भी आ गया। फिर 13 हो गया ना, अभी 13 में हो गया 14, 15 क्यों दिखा रहा है फिर भी? Who is missed? किसने अटेंडेंस नहीं दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 है। उधर 14 13 क्यों दिखा रहा है? एक मिनट चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही दिखा रहा है। 14 कौन है? यस, कौन है? दूसरे नाम से है या फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं ना। अर्णवाद है, दीक्षांत है, चाकाश है, ऋषि है, अर्णव भट्ट है, फिर उसके बाद जसवाल दिलीप है। देन कामले आकाश नहीं है ना? आकाश 84 है। देन नेक्स्ट जिशान है। फिर ना अभिषेक मिश्रा हो गया। आदर्श मिश्रा है। आदर्श आदर्श करके है क्या? नहीं। नेक्स्ट उसके बाद सिद्धार्थ नायर है। खुशबू नहीं है। प्रियंका पटवा है। राठौड़ प्रियंका है। शेख शाहनवाज है। उसके बाद शेट्टी ऋषभ। शेट्टी ऋषभ वो भी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आपका है सोमेश शिंदे है। उसके बाद तिवारी मंगेश नहीं। और कौन रह गया अभी? विश्वकर्मा सोनम नहीं है। गुप्ता नितेश। तो मेरा कंप्लीट प्रॉपर हो गया आफ्टर F3 से लेके F29 तक। अच्छा, एक स्टूडेंट बराबर है। चलो हो गया, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। चलो हो गया 14। ऑल आर प्रेजेंट। चलो 14 क्लियर। नाउ आई लीव द मीटिंग। बहुत कम स्टूडेंट्स है, 28 में से 50% प्रेजेंट है। एनी डाउट? नो सर। sir. सर कॉलेज Okay. ओपन होने का कुछ न्यूज़ आया क्या? नहीं, अभी तक आया नहीं है, लेकिन शायद नवंबर से मे बी स्टार्ट होगा, लेकिन आई कांट गिव यू एश्योरेंस। सर नवंबर 31 तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। हाँ, that's all. उसके लिए मैं अभी कंफर्म आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज ट्राई टू स्टडी एट होम ऑल्सो। पहले तुरंत आप इंटर करोगे और तुरंत प्रॉब्लम होगा, वैसा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट होगा, क्योंकि वी हैव टू कीप वेल एट होम ऑल्सो एंड इन कॉलेज ऑल्सो, राइट? तो वो सारी सर चीजें हम लोग का 5 लेक्चर है ना, अभी तो 4 ही होता है खाली। 5 लेक्चर कौन सा मिस है? मैथ्स का? मैथ्स का नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो मैथ्स के टीचर्स आएंगे तभी होगा। No issue. देखते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। ओके, ओके सर। क्या प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नाउ आई स्टॉप, एंड ऑफ द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट यू। थैंक यू।